is assigned to the नहीं, work असाइंड क्या बोलोगे आप? से असाइंड बेटा, असाइंड। assigned to the workbook. Look at the comments of कंपोनेंट्स से MS नो, से कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। हाँ, components MS ऑफ, Excel window. ओके Shortcut नाउ स्टॉप। खेमराज, यस खेमराज, हाँ कंटिन्यू करिए बेटा। To open a new workbook, हम्म, click Control plus and component of MS Excel window. हम्म, Microsoft Excel consists of the following components. Quick Access Toolbar. It contains commands that are frequently used like save, undo, redo, print, and etc. Title bar. It displays the name of the workbook and three control buttons. Minimize, maximize, and close. Ribbon. It contains two स्टॉप, parts. स्टॉप खेमराज बेटा, स्टॉप। गोपाल, गोपाल स्टार्ट करिए। गोपाल स्टार्ट करिए। बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ऑन योर माइक, यस। अभी भी नहीं आ रही है वॉइस? वॉइस नहीं आ। दिव्यम, गोपाल स्टॉप बेटा। दिव्यम यस स्टार्ट। Ma'am, it contains two parts, 8 tabs: file, home, insert, page, layout, formulas, data, review, and view. Each tab contains commands in different groups. Cell name box. It displays the name of active cell or cell reference. The column letter and row number corresponding to active cell is displayed in the cell name box. Active cell. The selected cell is called the active cell or current cell. It displays with bolder that differentiate it from the rest of the cells. The highlighted box is called दिव्यम cell स्टॉप number. बेटा। हिमांशु, यस हिमांशु कंटिन्यू करिए बेटा। Can also be used to select the cell on the worksheet to enter the data in a cell. You first need to select it. Formula bar. It displays the data and formulas that you entered in an active cell. It can also be used for entering or editing data, labels, and formulas. Rows. These are horizontal line of cell and labeled using number 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Columns. These are हाँ, vertical line of cell and labeled using letters I, E, A, B, C, D, and so on. C tab स्टॉप is बेटा, स्टॉप। संचिली कंटिन्यू करो आप। माइक ऑन करिए। मोबाइल स्क्रीन पर टैप करो पहले आप। मोबाइल स्क्रीन पर टैप करके माइक पर टैप करिए, तब माइक ऑन होगा। हाँ, अब बोलो आप, बोलिए। sheet tab indicates the name of the worksheet, and you can switch between the different sheets by clicking on it.
Status bar. It displays information about current selection that includes total number count of cells in the selection that contain the data, average of the numeric value in the cells, and sum of the numeric data in the cells. View button, zoom slider, etc. Same important term. वेरी गुड संजली, स्टॉप. आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट आपका मुझे अभी लगा. यस कनक, स्टार्ट. Some important terms. Workbook. Each Excel file is known as workbook. It can hold many worksheets. The default workbook is book 1, worksheet. A worksheet is a collection of cells in the form of rows and columns. In MS Excel, by default, there is one worksheet in a workbook. These are represented in the form of tabs or above the status bar column. स्टॉप. हर्ष, Yes, ma'am. स्टार्ट करिए आप. Yes. A worksheet collection of the cells from of rows and columns in MS Excel by default. There is a one worksheet in a book, workbook. These are represented in the forms of a tab above the status bar columns. Columns are arranged vertically. These are represented as the letter from A and Z and the AA to AZ and so on. There is total of 16, 38, 4 columns. याद रखना कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं. 16,384 कॉलम्स वर्कशीट पर. Yes, sir. अभी Rows- मैं एक्सप्लेन rows- करूंगी आपको. स्टॉप बेटा. rows- रक्षा, Rows are arranged horizontally. This number from 1 to 10, 48, 57, 6. The last row is 10, 48, 57 एक and 6. सेकेंड. रक्षा, आप क्लास Yes, ma'am. 5th में हो ना? Yes, क्लास ma'am. 5th में हो. इन नंबर्स को आप कैसे रीड करोगे? इस तरह से रीड करोगे. 10,48,576. क्या बोलेंगे आप? 10,48,576. Okay, read it, repeat it. Rows are arranged horizontally. First say 10,48,756. 10,48,576. Yes. Now next. Cell. A cell is the intersection of a row and a column. Each cell can store in a single item of data, which can be text, number, or a formula. Each cell has a Unique address. Stop. unique address. Aradhya. Cell reference. Cell reference is the column letter and the row number that identifies a single cell. For example, A1 is the cell reference of the selected cell in the worksheet. A cell reference can be thought of as a cell name. The address of the first cell in a worksheet is A1 and the last cell address is XFD1 10,416. Cell range. Cell range is a group of contiguous. Beta, stop. Shikha. Harsh Sharma on your video. Shikha. शिखा रीड करिए. हाँ, रीड करिए. सेल रेंज से स्टार्ट करिए बेटा. पेज नंबर 66.
बेटा फास्ट, माइक पर पहले क्लिक करो आप, टैप ऑन माइक। हाँ, रीड करिए। आराध्या नॉट ऑडिबल क्या? शिखा, अच्छा रक्षा चाहर, आप स्टार्ट करो। Yes, ma'am. Cell range. Cell range is a group of cells to each other. A cell range name consists of the cell address of the first cell, a colon, and the last cell address from example B to C4. The Okay. smallest range is a single cell and the largest range is the internet worksheet. हाँ नेक्स्ट, आगे रीड करिए बेटा। Selecting रक्षा, deselecting call cell range. To select a cell, स्टॉप, रक्षा स्टॉप, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ लेट्स स्टार्ट the first, now open first page ना of lesson 6, पेज नंबर 63 ओपन करिए। देखिए पेज नंबर 63 पे आपको बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इट्स अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। हाईलाइट दिस लाइन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. It is used for storing the data in the form of the rows and columns. इसमें जो बेटा डेटा स्टोर होता है वो किसमें स्टोर होगा? रोज में और कॉलम में। रोज और कॉलम में हम डेटा को, आपने एक टेबल देखी है, टेबल किससे मिलकर बनी होती है? रोज से मिलकर बनी होती है, कॉलम से मिलकर बनी होती है। सेम ऐसी वर्कशीट भी क्या होती है? रोज और कॉलम्स दोनों से मिलकर बनी रहती है। हाँ, ये क्या यूज करती है? इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स। अभी बताया ना, तो इसमें डेटा आपका डिस्प्ले होता है, ये टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ओके, टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले रहेगा। अब है, एक्सेल इज यूज टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड फंक्शन to perform the calculation on the data and present the data in the variety of the professional looking charts. एक्सेल में आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को, पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शंस हैं, फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द डेटा, डेटा पर मतलब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो डेटा को। कैलकुलेट करने के अलावा डेटा में पहले पहले से जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं उनको यूज कर सकते हो, फंक्शंस को यूज कर सकते हो, एंड प्रेजेंट द डेटा इन द वैरायटी ऑफ द प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट। यहाँ तक कि आपका जो डेटा है उसको आप चार्ट पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज देखी है, न्यूज में मार्केटिंग न्यूज देखते होगे तो सेंसेक्स की न्यूज चार्ट पर आती है। तो सेम एज हम डेटा सबसे पहले क्रिएट करके, टेबल क्रिएट करके उसके अकॉर्डिंग चार्ट पर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिव्यांशी, लिसन केयरफुली। सम ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द एक्सेल आर, एक्सेल के कुछ एडवांटेज दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स आप लोग जानते ही हो, कैलकुलेशन मीन्स क्या होता है? कैलकुलेट करना है वैल्यूज को। तो आप कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में करते हो, मैथमेटिक्स में सारे कैलकुलेशंस होते हैं। आप एडिशन भी करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं ना। तो नंबर्स एंड कैलकुलेशन आर मैनेज्ड एफिशिएंटली। फॉर्मूला वंस रिटर्न कैन बी easily copied to the rest of the worksheet। ठीक, इसमें क्या होता है? नंबर्स और कैलकुलेशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप किसी एक फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करोगे तो इस फॉर्मूला को आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, केवल आपको डेटा को कॉपी करना पड़ेगा, राइट। फॉर्मूला को एक बार बस आपको राइट करना है, उसके बाद उसको कॉपी करते जाना है, तो जितना भी डेटा है सब पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, अब नेक्स्ट है, इफ एनी चेंजेस, यदि मान लीजिए कोई भी चेंज हो रहा है वैल्यूज में और रिकैलकुलेशन में, तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वर्कशीट में। सपोज मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप लोग एडिशन करते हो,
एडिशन में आपने कुछ नंबर्स लिए 2 + 4 + 6, हाँ आपने वर्कशीट में भी डाल दिया 2, 4 और 6 इन नंबर्स को प्लस करा रहे हो और आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें बेटा आप लोग बस एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस वाली बात आगे आएगी। जो सेल्स होती है सेल्स का एड्रेस राइट करते हैं। और जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला जो नंबर था वो A1 में था, थर्ड वाला नंबर C1 में है, तो इसमें लिखेंगे हम A1 + C1 इक्वल A1 + C1 इक्वल A1 + C1 क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अभी उसमें कौन कौन सी वैल्यूज थी, 2 था, 4 था और 6 था। 2, 4 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आता है, 2 को, 4 को और 6 को प्लस करते हो तो 12 आता है ना। अब मान लीजिए आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 12 आ गया। अब मान लीजिए सपोज आपके दिमाग में आया नहीं यहाँ पे मुझे 4 नहीं करना था, मुझे यहाँ पे भी 7 करना था। तो अब आप किसको प्लस कर रहे हो, 2 को, 7 को और 6 को। तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट होगा वो चेंज होकर पता है कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 2, 7 और 6 प्लस करते हो तो कितना होता है 15। ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। इस पैराग्राफ में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, ये है कैलकुलेशन। ठीक है। अब है नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा किसे बोलते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की कलेक्शन को आप डेटा बोलते हो। डेटा कैन इजिली भी, डेटा को आप इजिली क्रिएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो ना। एक्सेल में हम डेटा को इजिली क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फाइंडिंग अ वैल्यू दैट स्टोरिंग ऑफ द डेटा इज आल्सो इजी। ठीक है, वैल्यू को फाइंड करके उनको शॉर्ट करना ये भी काफी आसान होता है। देखो शॉर्टिंग क्या बोलते हैं, मान लो आप लोगों ने रजिस्टर्स देखे होंगे स्कूल में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल में आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा है, उसमें आपने देखा होगा नेम्स जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। फर्स्ट आपको ए नेम मिलता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है ना। तो इसे ही बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप ए टू जेड भी कर सकते हैं और जेड टू ए भी कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स में भी सॉर्टिंग होती है, नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, डेटा आप बताओगे, डेटा क्या होता है, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यू। यदि मैं पूछूं व्हाट इज डेटा, तो आप बोलोगे डेटा इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद है इफ एनी, फिर डेटा कैन बी इजिली भी, आप इसमें इजिली क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, यू कैन इजिली क्रिएटेड, मैनेज एंड एनालाइज इन MS Excel। अब फाइंडिंग अ वैल्यू एंड शॉर्टिंग ऑफ द डेटा इज आल्सो इजी। इसमें किसी भी वैल्यू को फाइंड करना, उसको शॉर्ट करना काफी इजी रहता है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है चार्ट। चार्ट क्या होता है, इसके 3 मेन एडवांटेज है। चार्ट क्या है, चार्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, चार्ट आप लोग भी बनाते हो, घर पर बनाते हो। मान लीजिए आपको किसी चीज कोई भी मैसेज रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो क्लीननेस का मैसेज है, हाँ स्वच्छता अभियान है, क्लीननेस का मैसेज है, तो आप क्या करते हो, चार्ट पर शो करते हो ना शो। और इसके अलावा क्या होता है, कुछ वैल्यूज के थ्रू भी यदि हमें चार्ट बनाना होता है, जैसे अभी मैंने आपको न्यूज का एग्जांपल दिया था, आप न्यूज पर देखते हैं कि चार्ट्स आते हैं। चार्ट किसके, वैल्यूज के थ्रू आते हैं। दिव्यांशी नहीं मानोगे, अभी मैं पूछूंगी, ध्यान रखना, मैं देख रही हूँ कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, अब है चार्ट। चार्ट क्या है, द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ चार्ट। अब सबसे पहले इस थर्ड वाले पॉइंट में इस लाइन को सब लोग हाईलाइट करो, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। द पिक्टोरल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ चार्ट। पिक्टोरल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ चार्ट। हाईलाइट करिए, पिक्टोरल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। यदि मैं पूछूं आपसे व्हाट इज चार्ट, तब आप बोलोगे द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द चार्ट। यू कैन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स। अब आप इसमें वैरायटी ऑफ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से चार्ट हैं, अब नेम देखेंगे, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट एटसेट्रा। इसमें 3 चार्ट्स के केवल नेम दिए गए हैं अभी आपको, कॉलम, बार और पाई ना। you can also make use of the 3D, you can also make use the 3D effects। आप इस पर 3D effects को भी डाल सकते हो। ओके, अब है स्टार्टिंग द MS Excel। MS Excel हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। MS Excel स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सबको आता होगा MS Excel स्टार्ट करना, कोर्स में आप लोगों ने स्टार्ट भी की है। कैसे स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप कहाँ क्लिक करेंगे,
स्टार्ट बटन पर। सेकंड पॉइंट है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पर ना। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद आपको बेटा एमएस ऑफिस एक पैकेज मिलेगा ना। एमएस ऑफिस पैकेज में आप क्लिक करते हो एमएस एक्सेल पर, राइट। इस तरह से आप एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बुक में केवल एक ही पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट दिया गया, इस तरह से स्टार्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मेन इजी जो मैंने बताया है आप इस तरह से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करोगे, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स आएगा, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस के बाद आपने क्लिक करना है एक्सेल पर, राइट, ठीक है। और इसमें एक और दिया गया है, यदि आप मान लीजिए एमएस एक्सेल अमेजिंग फैक्ट, कुछ एक अमेजिंग फैक्ट है साइड में, सभी अमेजिंग फैक्ट को टिक करो। पहले अमेजिंग फैक्ट को टिक करिए। Many types of the spreadsheet programs are available. Some of the popular spreadsheet are Lotus, Calc, Apple, Numbers, Numeric. इसे बोला गया है बहुत तरह के स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हम लोग अभी एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं। एक्सेल टाइप के तरह के स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं, वो हैं लोटस, कैल्क, एप्पल नंबर्स एंड जीन्यूमेरिक, ठीक है। ये भी एक तरह के स्प्रेडशीट है। यदि आपसे दूसरे स्प्रेडशीट पूछे जाए तब आप बताओगे ये, ठीक। इनको टिक कर लीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन टिक करा रही हूँ कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, पूरा टिक करना है। हमें तो पूरा टिक करना है। इसमें बस केवल 3 लाइंस को आपको याद रखना है, कैल्क, एप्पल नंबर्स, लोटस, जीन्यूमेरिक। कैल्क, लोटस नंबर, लोटस, कैल्क, एप्पल नंबर्स और जी न्यूमेरिक, ठीक है। ये अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें भी आप यही वर्क करते हो जो आप एमएस एक्सेल में करते हो, ठीक। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमएस एक्सेल इज दिस टाइप ऑफ द प्रोग्राम, तब आप बोलोगे इट्स अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, राइट। तब आपका आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। मैंने सबसे पहले फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन को भी हाईलाइट कराया था। यदि जिसने भी नहीं किया हो फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा। सभी फर्स्ट लाइन हाईलाइट करेंगे, एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम ना। इसके बाद इसके मेन एडवांटेज क्या है, एमएस एक्सेल के मेन एडवांटेजेस में है कैलकुलेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, चार्ट है, राइट। इसमें 3 एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन टिक करिए, सेकंड टिक करिए डेटाबेस मैनेजमेंट, थर्ड टिक करिए चार्ट। ये 3 एडवांटेजेस आप लोग लर्न करोगे, ओके। यदि मैं 3 एडवांटेजेस पूछती हूँ तब आप बताएंगे कैलकुलेशन, और क्या बताया है, कैलकुलेशन के बाद आपको चार्ट्स बताए हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट ना। अब है नेक्स्ट है, नाउ टर्न द पेज, पेज टर्न करिए सभी। हाँ, इसमें एक नोट दे रखा है, नोट सभी टिक करिए, टिक दी नोट पर है कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, टाइप करना है एक्सेल इन द टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना ना। तो इसमें आप करेंगे नोट को टिक करिए, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, टाइप द एक्सेल इन टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस की, ठीक। अब सेकंड वाला नोट देखो, सेकंड नोट को देखिए क्या है, एमएस एक्सेल कैन आल्सो बी ओपन यूजिंग द रन विंडो। रन विंडो को यूज करके भी आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हो। 3 वेज आज मैंने बताए, ये 3 वेज कल मैं पूछूंगी। जो नोट टिक कराए हैं इन्हें भी याद रखना। रन विंडो कैसे ओपन करते हो, प्रेस विंडो प्लस आर की, आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर की को प्लस करना है। द रन डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स आएगा। टाइप द एक्सेल इन द बॉक्स, बॉक्स में आप एक्सेल टाइप करोगे, फिर ओके बटन पर क्लिक करोगे, राइट। इस तरह से भी आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हो। रन विंडो के लिए क्या करते हैं, विंडो प्लस आर कीज, फिर रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, फिर आप बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल, फिर उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है न्यू वर्कबुक सिलेक्शन विंडो अपीयर, आपके सामने एक वर्कबुक सिलेक्शन विंडो आती है। इट डिस्प्लेज द टेस्ट लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यू वर्कबुक। इसमें
इसमें न्यू वर्कबुक की डिफरेंट लिस्ट आएंगी थंबनेल व्यू में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्कबुक दे रखी होंगी थंबनेल व्यू में। अब हाँ, फिर नेक्स्ट है क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन। आपने क्लिक क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो अपीयर विद अ ब्लैंक workbook. A temporary name book 1 is assigned to the workbook. Look at the components of the MS Excel window. ठीक है, जब भी हम बाय डिफॉल्ट जो वर्कबुक आती है, पहली वर्कबुक आप जो लोगे वो क्या होगी, ब्लैंक वर्कबुक आएगी, और बाय डिफॉल्ट इसका नेम बुक 1 होगा। बुक 1 जो होता है बाय डिफॉल्ट नेम होता है, फिर आप इसकी नेमिंग करते हो, जब सेव करते हो तब आप इसको एक फाइल नेम दोगे, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में देखिए आप कंपोनेंट्स कुछ देखेंगे, राइट। कंपोनेंट अब इस आपकी बुक पर देखो शॉर्टकट की दे रखी है, शॉर्टकट की देखिए, शॉर्टकट की है Ctrl+N, Ctrl+N शॉर्टकट की है। टिक दिस पॉइंट, शॉर्टकट की Ctrl+N, ओके। अब मैं आपको इस स्क्रीन पर कुछ एक्सप्लेन करूंगी, सभी ध्यान देंगे स्क्रीन पर, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये रहा स्टार्ट बटन, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्ट बटन, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं, राइट। स्टार्ट बटन करने के बाद आप एक्सेल पर क्लिक कर देंगे। ये आपका वर्जन जो आप पढ़ रहे हो वर्जन है 2016, MS एक्सेल का वर्जन है। सबसे पहले वर्जन याद रखना 2016। 2016 में जब हम करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट एक्सेल पर क्लिक करने से विंडो ओपन हो जाती है ना। लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, आप लैब में जाओगे, लैब में 2010 है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, MS ऑफिस चूज करेंगे, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द MS एक्सेल ना। अब मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, सेकंड था स्टार्ट बटन पर क्लिक करके फिर टेक्स्ट बॉक्स में आप एंटर टेक्स्ट बॉक्स में एक्सेल टाइप करके भी एंटर कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट था जो मैंने रन विंडो के थ्रू बताया। रन विंडो पर क्या करना होता है, आपको विंडो प्लस आर की को आप प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर की को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें आप एक्सेल टाइप करोगे, फिर ओके कर दोगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट है कुछ ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं MS एक्सेल विंडो के। कंपोनेंट्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉर्नर वाला पॉइंट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जिन कमांड्स का हमको बार बार यूज होता है, हाँ, which commands are used frequently, these are placed in the quick access toolbar। हाँ, जिनका हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उनका ये कमांड्स आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएगा। और नेक्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार किसको बोलते हैं, ये टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, ये फाइल नेम यहाँ पर बार में। नेक्स्ट है रिबन। ये रिबन है, जब हम किसी भी मेन्यू पर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड रिबन ओपन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिबन। रिबन के बाद देखिए नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड, सेकंड इज कॉल्ड द मेन्यू बार। यहाँ पे मेन्यू बार को हाइड कर दिया गया, मेन्यू बार नहीं बताएगा आपकी बुक में, ये है मेन्यू बार। जब भी आप व्हेन यू क्लिक ऑन एनी मेन्यू देन द रिबन इज ओपन ना। नाउ लुक हियर, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है सेल नेम बॉक्स। यहाँ पर देख रहे होगे लेफ्ट साइड में, दिस इज कॉल्ड एज द सेल नेम बॉक्स। यहाँ पे सेल का नेम आता है, सेल का नेम पता है आता है, ध्यान से सुनना। सपोज मान लो ये आपका है, ये रोज और कॉलम सुन लो पहले। रोज और कॉलम क्या होते हैं, ये डायरेक्ट आप लाइन देख रहे होगे, डायरेक्ट लाइन को देख रहे हैं आप, इस टाइप से देख रहे हो, हाँ, दिस इज कॉल्ड द कॉलम। इसको आप क्या बोलोगे, कॉलम। और ये है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए हिमांशु, दिस इज कॉल्ड एज द कॉलम। इसको आप दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, इसको कॉलम बोलेंगे। एंड दीज आर कॉल्ड एज रोज। हाँ, ये रोज होती है, रोज आपकी इस साइड से होती है और कॉलम ये रहते हैं। यहाँ पे यदि कॉलम नंबर बोला जाए तो कॉलम क्या है,
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये सारे के सारे कॉलम हो गए। और रोज यदि बोली जाए बेटा तो रोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से रोज चल रही हैं, राइट। और इस तरह से आपके कॉलम्स चल रहे हैं। और इसका जो बीच वाली एक छोटा सा बॉक्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल। इसको आप क्या बोलते हो? सेल बोलते हो। सेल की नेमिंग पता है कैसे करते हैं? सेल की नेमिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे कॉलम का नेम होता है। सपोज मान लो इस सेल की नेमिंग करनी है, राइट। इस सेल की नेमिंग कैसे करेंगे? इसका कॉलम देखो, पहले कौन सा कॉलम है? कॉलम है जे। ये कॉलम क्या है? जे। कॉलम है जे। अब इसका रो नंबर देखो, रो नंबर क्या है? रो नंबर है